Hello students, so today we will be continuing with the chapter of standard 9 science 2 chapter number 16 life processes in living organisms. Now in this chapter, in the last lecture, we learnt about transportation. We learnt about transportation in plants and we learnt about transportation in animals, and we learnt about excretion in plants. So today we will be learning about excretion in human beings. So what is excretion? I had told you all in the last lecture. It is the process by which all the waste products which are produced in our body are eliminated outside our body. ठीक है? So plants, as we discussed in the last lecture, they do not have a particular excretory system. कोई fixed organ नहीं है वो लोग के पास. But opposite of that, human beings have a fixed excretory system. They have a fixed excretory organs. अभी ह्यूमन बींग्स में तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं. जो द फूड वी ईट, फ्रॉम दैट सो मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड. थ्रू रेस्पिरेशन ऑल्सो मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स. And in order to get rid of these waste products, we have this entire excretory system within us. So this is the diagram of the human excretory system. So what is there in human excretory system? Now हमारे पास human excretory system में there are two kidneys, okay? One on the right side and one on the left side. So the kidneys are situated on either side of the vertebral column. Vertebral column सबको पता है, right? The column of bones which is present in the center, which encloses the spinal cord. तो उसके either side पे, एक right side पे और एक left side पे, each kidney is present. So this is one kidney and this is one kidney. अभी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, ठीक है, कि एक कैप की तरह ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड. व्हाट डू वी कॉल इट? एड्रिनल ग्लैंड. सो वर्टेब्रल कॉलम के ईच साइड पे, राइट साइड पे एक एंड लेफ्ट साइड पे एक एक किडनी होती है, एंड वो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज द एड्रिनल ग्लैंड. ओके, नाउ किडनी होती है. देन वी हैव अ पेयर ऑफ यूरिटर. हर एक किडनी में से एक एक यूरिटर निकलता है, एंड यूरिटर कहाँ जाके कनेक्ट होता है? इट कनेक्ट्स इन द ब्लैडर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूरिनरी ब्लैडर. सो किडनी में से यूरिटर आते हैं. फ्रॉम ईच किडनी वन यूरिटर कम्स आउट, एंड दिस यूरिटर कम्स एंड कनेक्ट्स विद द यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली वी हैव वन यूरेथ्रा. सो किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. तो एंड बीच बीच में ये सब है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स. अभी किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बनता है, इट इज एक्सपेल्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, राइट? सो ये यूरिन कहाँ पे बनता है? इट इज फॉर्म्ड इन द किडनी. So what is the function of the kidney? I'll write it in a darker color. Kidney का function is it is responsible for formation of urine. ठीक है, तो किडनी में यूरिन तो बन गई. Now ये यूरिटर का फंक्शन क्या है? किडनी में से क्या निकल रहा है? यूरिटर. So this ureter is responsible for carrying the urine or transporting the urine. So what is the function of ureter? The function of ureter is transportation of urine. So what is the function of ureter? Ureter is responsible for transportation of urine. Then ureter कहाँ आके connect हो रहा है? urinary bladder में. तो urinary bladder का function क्या है? It is responsible for storage of urine. मतलब किडनी यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप बनाते जाएगा, एंड दिस यूरिटर विल कीप ऑन ट्रांसपोर्टिंग इट टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन स्टोर करते जाएगा. सो व्हाट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन. ठीक है, तो किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. यूरिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द यूरिन विच द किडनी हैज फॉर्म्ड. Urinary bladder is responsible for storing the urine which the ureter brings, and urinary bladder क्या करते जाएगा? यूरिन स्टोर करते जाएगा, and finally एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ब्लैडर भी फुल हो जाएगा.
सो व्हेन दिस ब्लैडर इज फुल, अभी यूरिन को बॉडी से बाहर जाना पड़ेगा, तो वो यूरिन बॉडी से बाहर किसके थ्रू जाएगा? यूरेथ्रा से. सो व्हाट इज यूरेथ्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्शन ऑफ यूरिन. एक्सपल्शन मतलब बॉडी से बाहर निकालना. ठीक है, तो किडनी क्या करता है? यूरिन बनाता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. अभी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बाद यूरेटर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन, मतलब जो यूरिन किडनी ने बनाया यूरेटर उसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? यूरिनरी ब्लैडर में. तो जैसे जैसे यूरेटर यूरिन लाता जाएगा वो कहाँ आके स्टोर होते जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन. एंड ये जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, जब ये ब्लैडर पूरी तरह फुल हो जाएगा तो ये यूरिन बॉडी के बाहर कैसे जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू. एंड दिस यूरेथ्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्शन ऑफ यूरिन. एक्सपल्शन मतलब फॉर रिमूविंग द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. So these are the main parts of the excretory system: kidney, ureter, urinary bladder, urethra. अभी ये बाकी सब क्या है? Now the one which is marked in blue is the renal vein and the one which is drawn in red is the renal artery. अभी these are blood vessels, right? Arteries and veins are blood vessels. Renal, कहीं पे भी word renal आया मतलब it is related to kidney. Always remember this. Wherever you see the word renal मतलब उसका कुछ तो connection kidney के साथ है. अभी ये रीनल वेन है एंड रीनल आर्टरी है, मतलब ये आर्टरी और वेन किडनी के साथ कनेक्टेड है. तो इनका फंक्शन क्या है? सो एनीवेयर इन द बॉडी, जस्ट रिमेंबर दिस, वेरेवर यू सी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड wherever you see vein, vein is responsible for carrying deoxygenated blood. Which blood? Deoxygenated blood. अभी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड मतलब उसके पास ऑक्सीजन है एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है. तो ऑब्वियसली बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए? बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. और बॉडी को कौन सा ब्लड नहीं चाहिए? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको नहीं चाहिए. सो ऑल द आर्टरीज इन द बॉडी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो अभी ये रीनल आर्टरी भी क्या कर रही होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होगी. और ये रीनल वेन क्या कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी. ठीक है, अभी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आर्टरी क्या करेगा? ब्लड को बॉडी के पास लेके जाएगा, राइट? क्योंकि जो ब्लड आर्टरी के पास है बॉडी को वो ब्लड चाहिए, बिकॉज आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बिकॉज द बॉडी नीड्स दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, these arteries are responsible for carrying blood towards the body. Okay, and veins के पास क्या है? deoxygenated blood. अब body को ये deoxygenated blood नहीं चाहिए, the body does not want it. तो veins are responsible for carrying this deoxygenated blood away from the body. तो artery carries blood towards the body, body parts के पास ले जाएगा, and veins क्या करेगा? It will carry blood away from the body parts. तो अभी यहाँ पे ये रीनल आर्टरी भी क्या करेगी? इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द किडनीज. ठीक है, वो किडनीज को ला के देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके फंक्शन इंश्योर करने के लिए. और ये वेन क्या करेगी? रीनल वेन, इट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनीज. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से दूर लेके जाएगी. कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास लेके जाएगी. लंग्स के पास ऑक्सीजन होता है, राइट? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो वेन लंग्स के पास लेके जाती है. लंग्स में जाके वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है. ऑक्सीजनेट हो गया, फिर लंग्स में से आर्टरी निकलती है और वो उसको ऑर्गन के पास लेके आती है. तो वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स आर्टरी विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द ऑर्गन. सो रीनल वेन भी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जाएगी, वहाँ जाके वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा एंड वहाँ से रीनल आर्टरी क्या करेगी? इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द किडनीज. तो ये है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन का फंक्शन. अभी इफ़ यू सी इनसाइड द किडनी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो
द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर का जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. व्हाट इट इज कॉल्ड? कॉर्टेक्स. ठीक है, दिस इज द आउटर पार्ट. एंड किडनी के अंदर का जो इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? मेड्यूला. सो किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स. एंड जो किडनी के अंदर का इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द मेड्यूला. एंड ये किडनी के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जो ये बीच का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस. जो ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला जहाँ पे जाके मिलते हैं ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द रीनल पेल्विस. So the outer part of the kidney is called as the renal cortex. The inner part of the kidney is called as the renal medulla, and the meeting point of the cortex and the medulla is called as the renal pelvis. ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? सबसे पहले वी हैव किडनी. 2 किडनी होती है, वन ऑन द राइट साइड, वन ऑन द लेफ्ट साइड. एंड किडनी का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. किडनी ने यूरिन बना दिया, ये यूरिन को आगे कौन ट्रांसपोर्ट करता है? यूरिटर. 2 यूरिटर होते हैं जो हर एक किडनी से निकलते हैं, वन राइट यूरिटर एंड वन लेफ्ट यूरिटर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस यूरिटर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन. जो यूरिन किडनी ने बनाया वो ये यूरिटर आगे ट्रांसपोर्ट करेगा. कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास. So what is this urinary bladder responsible for? It is responsible for storage of urine. जो यूरिन किडनी ने बनाया उसको स्टोर कौन करेगा? यूरिनरी ब्लैडर. एंड देन जब ये ब्लैडर भर जाएगा सो दैट यूरिन वो बॉडी के बाहर एक्सपेल कहाँ से होगा? दैट यूरिन विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा. ठीक है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो किडनी की कैप होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? एड्रीनल ग्लैंड. अभी ये जो ब्लू कलर में है दैट इज द रीनल वेन एंड रेड में रीनल आर्टरी. आर्टरी का फंक्शन क्या है? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेयर डू दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? टुवर्ड्स द बॉडी. So we learnt about the structure of a human excretory system. Now in the human excretory system we understood that the most important organ which is present in the human excretory system is the kidney. Without the kidney there is no use of the human excretory system. Why? Because kidney is only responsible for formation of urine, right? अगर किडनी ही नहीं होगी तो यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होगा. So kidney is the most important organ of the human excretory system. अभी किडनी के अंदर जो cells होते हैं, those cells are called as nephron. What are they called as? Nephron. And these nephrons are the structural and functional unit of kidney. मतलब क्या? अगर ये nephrons नहीं होंगे तो वो किडनी का भी कोई यूज नहीं है. These nephrons are basically responsible because of which the kidneys are able to efficiently perform their function. They are the structural and functional unit of the kidney. And in one kidney, how many nephrons are there? There are about 4 to 5 millions of nephrons in one kidney. So you can imagine कितना coil करके रखा होगा वो nephrons को, right? So one kidney has about 4 to 5 million nephrons. ठीक है? So now we will understand the structure of nephron, and with the help of that structure of nephron we will understand how urine formation occurs. What is the okay, so we understood the structure of human excretory system and we understood what is a nephron. मैंने बताया किडनी के अंदर there are millions and millions of nephron present and this is how the nephron looks like. A single nephron का structure कुछ ऐसा होता है. So let us understand the structure of nephron now. तो structure of nephron में ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल. क्या बोलते हैं? बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस स्ट्रक्चर. इसके लिए इसका नाम है बोमैन्स कैप्सूल. एंड इसके अंदर जो ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? ग्लोमेरुलस. So inside the Bowman's capsule there is a tuft of capillaries which is called as the, ये हो गया Bowman's capsule and glomerulus के बारे में. And then the nephrons is made up of many tubules.
सो जो सबसे पहले ये स्टार्टिंग वाला ट्यूब्यूल है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अभी कॉन्व्यूलेटेड मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कॉन्व्यूलेटेड? सबने टेलीफोन का वायर देखा है राइट, वो कैसे गोल 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 स्प्रिंग की तरह होता है। तो वो जो पैटर्न है ऑफ फोल्डिंग इन राउंड राउंड पैटर्न, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्व्यूलेटेड। व्हाट इट इज कॉल्ड एज कॉन्व्यूलेटेड। तो ये जो स्टार्टिंग का कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब द ट्यूब्यूल विच इज प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद में एक लूप आता है, एक यू शेप स्ट्रक्चर। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये कॉन्व्यूलेटेड नहीं है, देखो ये ऐसे है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनली। अगेन हेनली वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस लूप, so this is called as the loop of Henle, a U-shaped structure. फिर उसके बाद में फिर से एक कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल आ जाता है जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है राइट, इट इज प्रेजेंट डिस्टली, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में एक डक्ट आता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाके ओपन होता है? यूरेटर में। So what is there in the structure of nephron? There is this cup-like structure which is called as Bowman's capsule. Inside the Bowman's capsule there is a network of capillaries which is called as the glomerulus. Then there is a convoluted tubule which is present proximally, that is which is present in the front, which is called as the proximal convoluted tubule. Then there is a U-shaped loop which is called as the loop of Henle. Then again there is a convoluted structure which is present distally, which is called as the distal convoluted tubule. Then we have a duct, a pipe-like structure which is called as the collecting duct, and this collecting duct goes and opens in the ureter. तो ये है structure of nephron. अभी this nephron में the process of urine formation occurs. अभी हाँ एक और चीज़, you can see यहाँ पे ग्लोमेरुलस में दो चीज़ें आई हैव मेड. सो व्हाट इज दिस? कैन यू गेस? दिस इज नथिंग बट आ रीनल आर्टरी जो रेड कलर में है, एंड जो ब्लू कलर में है दैट इज नथिंग बट द रीनल वेन. सो द वन विच इज प्रेजेंट इन रेड इज द रीनल आर्टरी and the one which is present in blue is the renal vein. So both of them open in the glomerulus and they form capillaries which is called as glomerulus. तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो दिस रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन विल ब्रिंग द ब्लड ओवर हियर इन द ग्लोमेरुलस. ठीक है, तो दे विल, ब्लड के अंदर सब कुछ होगा, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस भी होंगे, वेस्ट मटेरियल भी होगा, एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट इन दैट ब्लड. So you all can remember one thing which is very simple, that this process of urine formation is very similar to the process of making tea. यूरिन बनाना मतलब चाय बनाने जितना सिंपल है. सबको चाय बनाना तो आता ही होगा, एटलीस्ट मेजॉरिटी को. तो चाय कैसे बनाते हैं? सबसे पहले पानी लेते हैं, पानी में चाय पत्ती शक्कर वगैरह जो भी है वो सब डालते हैं, उसको उबालते हैं, एंड देन हम उसको छन्नी के थ्रू छानते हैं राइट, दूध में डालने से पहले. तो जब हम चाय को छन्नी के थ्रू छानते हैं तो क्या होता है, छन्नी में बहुत सारी चीज़ें अटक जाती है एंड जो लिक्विड पोर्शन होता है वो नीचे हमारे कप में आ जाता है राइट. तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये रीनल वेन, रीनल आर्टरी जो है यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आएगी. अभी इफ़ यू ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, ये भी बिल्कुल छन्नी की तरह ही है. उसमें छोटे छोटे ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे छलनी में कैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वैसे ये ग्लोमेरुलस में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं. सो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, जो भी सॉलिड मटेरियल होता है, हमारे यूरिन में कोई सॉलिड सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते राइट. सो जो भी सॉलिड मटेरियल होता है वो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस में अटक जाता है. जैसे छलनी में कैसे सॉलिड मटेरियल्स अटक जाते हैं, वैसे ये ग्लोमेरुलस में भी जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ पे आके अटक जाते हैं. एंड दिस लिक्विड सब्सटेंसेस passes down into the Bowman's capsule. So the solids will get stuck up in the glomerulus and the liquids will come down in the Bowman's capsule. And then Bowman's capsule से the liquid starts traveling through the proximal convoluted tubule. फिर जब भी वो proximal convoluted tubule में आ गया, ठीक है, अभी हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे proximal convoluted tubule में आ गया. अभी ये लिक्विड के अंदर वेस्ट मटेरियल भी है, ये लिक्विड के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी है जो बॉडी को चाहिए. सो क्या होगा, ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में थोड़े सेल्स होते हैं.
सो ये सेल्स क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस बॉडी के लिए एसेंशियल है वो लिक्विड में से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी सब्सटेंसेस बॉडी के लिए एसेंशियल है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स फिर से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस अकर्स। देन कहाँ पे आएगा फ्लूइड, ये सो दिस इज द लूप ऑफ हेनली। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हुआ, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे उनका अब्जॉर्प्शन हो गया। लूप ऑफ हेनली में क्या होगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। लूप ऑफ हेनली में जितना वाटर बॉडी के लिए नेसेसरी है उतना वाटर लूप ऑफ हेनली में अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर लूप ऑफ हेनली से वो फ्लूइड कहाँ पे आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे भी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नहीं एब्जॉर्ब हो पाए वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब होंगे। सो हियर आल्सो देयर विल बी अब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फिर फाइनली यूरिन जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, एंड कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जाएगा यूरिटर में, यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, राइट। यूरिटर से किधर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से द यूरिन विल गो इनटू द यूरेथ्रा। सो क्या हुआ, सबसे पहले द ब्लड वॉज ब्रॉड बाय द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन इनटू द ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस एक्ट्स एज अ फिल्टर, so all the solid substances will remain in the glomerulus and the liquid matter will come down into the Bowman's capsule. From the Bowman's capsule it will go into the proximal convoluted tubule. What will happen in the proximal convoluted tubule, all the essential nutrients which are present in that liquid matter will get absorbed. Then वहाँ से the liquid will come into the loop of Henle. What will happen in the loop of Henle, all the water which is essential for the body will get absorbed. Then the urine will come in the distal convoluted tubule. What will happen in the distal convoluted tubule, again which nutrients could not be absorbed in the proximal convoluted tubule, they will get absorbed over here. Then it comes in the collecting duct. Collecting duct में जो fluid है that is our urine. फिर वहाँ से वो यूरिटर में जाएगा, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, and finally it will be expelled out through the urethra. So this is how the process of urine formation occurs in a nephron. Okay. Now on an average, अभी हमारे बॉडी में कितना यूरिन बनता है एक दिन में? So on an average a human being has about 4 to 5 liters of blood. How many liters of blood? 4 to 5 liters of blood. And this 4 to 5 liters of blood goes through the kidney about 90 times. About 90 times ये blood kidney के through जाएगा, वो filter होगा glomerulus से, और वो सारा process about 90 times होता है. तो एक दिन में कितना यूरिन बनता है? About 1 to 1.9 liter of urine. How much? 1 to 1.9 liter of urine is made every day in the human body. ठीक है? So we understood about the structure of human excretory system, we understood the structure of nephron, and we understood the process of urine. Okay, so we understood the structure of human excretory system, we understood structure of nephron, we understood how urine formation occurs. सो ये सब पढ़ने के बाद व्हाट वी अंडरस्टैंड कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा सो व्हाट विल हैपन इज जो भी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो रहे हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, बाकी जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो हमारी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे हैं, वो एक्सक्रीट ही नहीं होंगे तो वो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होते जाएंगे. वो हमारी बॉडी में अगर अक्यूमुलेट होते जाएंगे सो दे विल प्रूव टू बी पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, राइट. हमारी बॉडी में पॉइजनस हो जाएंगे वो इतना सिवियर हो सकता है दैट इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. अभी ये पूरे प्रोसेस में, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे ऑर्गन्स कौन से होते हैं? हमारी किडनी. तो यू कैन इमेजिन अगर हमारी किडनी ही फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा? यूरिन ही फॉर्म नहीं होगा, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ही बॉडी के बाहर नहीं जाएगा.
सो अगर एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी फेलियर, क्या बोलते हैं? किडनी फेलियर। सो किडनी फेलियर में क्या होता है? दिस किडनीज स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली। अभी इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, लाइक when a child is born, that time only that child's kidneys are not functioning. This can be one reason, or it can be due to some other disease, like people who have diabetes. There is a chance that that disease can affect their kidney and their kidneys can completely stop functioning. This can be one reason. Then there can be some injury to the kidney. कोई इंजरी हो गई किडनी को जिसकी वजह से उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया, बिकॉज ऑफ विच किडनीज का फंक्शन बंद हो गया, या बॉडी के ऊपर कोई पॉइजनिंग हो गई जिसने जाके किडनी को अफेक्ट किया, कोई मेडिसिन आपने ले ली, कोई ड्रग आपने ले लिया जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपकी किडनीज का फंक्शन बंद हो गया। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से योर किडनीज कैन गो इनटू अ कंप्लीट फेलियर। सो व्हाट विल यू डू? नाउ वी हैव 2 kidneys. If one kidney fails, it's okay. We still have another kidney which is functioning for us. So one kidney failure is not such a serious problem. But what if both your kidneys fail? अगर दोनों किडनीज फेल हो गई, देन यूरिन बनाएगा कौन, एक्सक्रीशन करेगा कौन? दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट? एंड इट इज सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में एक ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। किडनी ट्रांसप्लांट मतलब किडनी, वो वाली जो किडनी खराब हो गई उसको निकाल के उसकी जगह दूसरी किडनी बिठाना। बट दिस इज नॉट दैट ईजी एज इट साउंड्स। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यू शुड हैव समबडी हु इज रेडी टू डोनेट अ किडनी टू यू। कोई अपनी किडनी आपको देने के लिए रेडी है तो ही किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब किडनी देने के लिए कोई रेडी है, इट्स ओके, हो सकता है कोई भी आपकी फैमिली में से या कोई भी आपको किडनी देने के लिए रेडी है, बट दैट किडनी, आपकी बॉडी वो किडनी एक्सेप्ट भी करना चाहिए। दैट किडनी शुड बी एबल टू मैच विथ योर बॉडी, एंड किडनीज जल्दी मैच होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नो, द डोनर्स किडनी शुड मैच विथ योर बॉडी शुड एक्सेप्ट दैट किडनी। तो वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए परफॉर्म करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है किडनी डोनर मिलना, और किडनी डोनर मिलने के बाद भी उससे भी बड़ा चैलेंज है कि वो जो डोनर की किडनी आपकी बॉडी के साथ मैच करना। इफ़ यू आर लकी इनफ दैट ये दोनों चीज़ें हो गई, देन यू कैन हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट। एंड ये दोनों चीज़ें हो गई, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू आता है कॉस्ट का। दिस किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर विच नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। सो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑल्टरनेटिव। लेकिन अभी दूसरी सिचुएशन क्या? अगर आपको डोनर नहीं मिल रहा है, अगर डोनर की किडनी आपसे मैच नहीं हो रही है, अगर आप उतना किडनी ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? यू कैन नॉट लीव योर बॉडी एज इट इज़, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा। सो उसके लिए देयर इज अ किडनी ट्रांसप्लांट फी इज अ परमानेंट ऑल्टरनेटिव। एक बार आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, टेंशन खत्म। बट जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, जब तक डोनर नहीं मिलता या जब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता, तब तक व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव वी हैव? We have an alternative which is called as dialysis. What is it called as? Dialysis. And ये dialysis को एक और नाम है, it is called as artificial kidney. What it is called as? Artificial kidney. So ये basically dialysis है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है? इट इज़ अ प्रोसेस विच अकर्स इन द हॉस्पिटल, एंड इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। तो ये डायलिसिस के लिए जो मशीन होती है ना, जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायलाइजिंग मशीन। क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग मशीन। तो ये जो डायलाइजिंग मशीन है ना, ये आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, नकली किडनी का काम करती है। अभी हमारी किडनी का फंक्शन क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ अ ब्लड, राइट? वो पूरे ब्लड को प्योरीफाई करती है, जो भी ब्लड में से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज होता है फिर से बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देती है। तो ये डायलाइजिंग मशीन भी वही काम करती है। व्हाट इज़ डन इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जिसकी दोनों किडनी फेलियर में है, सो दैट पर्सन इज पुट ऑन दिस मशीन। उस इंसान की बॉडी में से, सपोज दिस इज दैट पर्सन, ठीक है, दिस इज दैट पर्सन जिसकी दोनों किडनीज फेल, ही इज अटैच टू दिस मशीन। इस पर्सन को इस मशीन से अटैच कर देते हैं। इस पर्सन की बॉडी में से एट अ टाइम 500 ml ऑफ ब्लड, कितना? 500 ml, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ लीटर ऑफ ब्लड लेते हैं, एंड दैट हाफ अ लीटर ऑफ ब्लड इज पास थ्रू दिस डायलाइजिंग मशीन। एक टाइम पे आधा लीटर ब्लड निकलता है, ये डायलाइजिंग मशीन के अंदर जाता है।
ये डायलाइजिंग मशीन में क्या होता है, वही जो किडनी में होता है। ये डायलाइजिंग मशीन वो ब्लड को प्योरीफाई करती है। व्हाट दिस मशीन डज, वो ब्लड में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्लड में रहने देती है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर फेंक देती है दूसरे पाइप से। सो दो आउटलेट्स होते हैं डायलाइजिंग मशीन के पास, एक जो पर्सन के पास जा रही है और एक जो बाहर जा रहा है। सो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डायलाइजिंग मशीन वो ब्लड में से बाहर फेंक देती है और जो भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज है वो मशीन फिर से वो इंसान के ब्लड के अंदर डाल देती है। सेम जो किडनी कर रही है, राइट। एसेंशियल सब्सटेंसेज फिर से बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही है एंड वेस्ट मटेरियल इज throwing out. Similarly, that dialyzing machine is also doing the same thing. It is absorbing the important substances and it is throwing away. So at a time 500 ml of blood is taken out of the person's body. It is passed to the dialyzing machine. The dialyzing machine will absorb the essential substances and it will throw away the remaining substances. ऐसे करते करते 500 ml की cycles चलती रहती है 4 to 5 liters of blood के लिए. So approximately 9 to 10 cycles होती है. So this is a artificial way, a temporary way for people who have kidney failure. So today we learned completely about excretion in human beings and we learned about dialysis. In the next lecture we will